और मूली हो जाए उखाड़ के फेंक देंगे। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है कि नवंबर से पहले खत्म हो जाएगी, इससे पहले नहीं चल सकती है। ये धमकियां देना बंद करें। हम लोग डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं, जीवन भर संघर्ष किया है। जब कुछ नहीं थे तब से संघर्ष किया है और संघर्ष किया है, कभी किसी की परवाह नहीं की। आप जानते हैं, आप बहुत बड़ी ताकत में रहे तब भी मैंने परवाह नहीं की। और आप 73 हैं, 60 से आपको 8 पर लाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि 73 जीत गए तो जीत जाओगे दोबारा भी। दिस परफॉर्मेंस विल नेवर बी रिपीटेड। इसलिए घमंड में आकर आपके प्रदेश के पदाधिकारी अपने सीमाओं से बाहर जाकर राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए जनता की निगाह में एक सेकंड अगर धमकियां देने की का काम करेंगे तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। गृह मंत्री देश की एकता का प्रतीक होता है। गृह मंत्री का राज्य उत्तर प्रदेश है। गृह मंत्री को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपने राज्य के अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को इंस्ट्रक्ट करें कि न तो वो दंगा फैलाने की बात करें, न राज्य सरकार को बर्खास्त करने की धमकी देने की बात करें। बहुत राम गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच। जो मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की जो रिपोर्ट आपको सुनाई थी वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है जिसमें का जिक्र है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मंगा लीजिए रिपोर्ट। अगर उस रिपोर्ट में इन दोनों के नाम हो तो मैं चाहूंगा कि मेरी कार्रवाई का हिस्सा बने, और अगर नाम नहीं है तो आप निकाल दीजिए, लेकिन आई एम रिकॉर्ड ऑन से। ओके, इसलिए सर उनको काटा ना जाए। मैं बाकायदा शपथ पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो गवर्नर थे वहां के, जिन्होंने एनटी रामाराव को हटाया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं उनको, और उत्तर प्रदेश के गृह राज्यपाल थे। अब बैठे। ओके, अब बैठे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, आपने बोल चुका। ठीक है, श्री राम गोपाल, श्री डॉक्टर अशोक गांगुली। अरे धर्मवीर का नाम Mr. Chairman, धर्मवीर I'm very का grateful. नाम भी आना चाहिए। Excuse me. Chairman, honorable members, through you, sir, I address the Department of Home and the Minister of State who is here. The Home Ministry, excuse me, please. The Home Ministry is the guardian of the quality of glue for national unity and integrity. I want to raise a few points for the time given to me on the following issues for your kind attention, Honorable Minister. I think the biggest priority today in the minds of the people is the safety of women on our streets. The second big worry that the person on the road has is the political influence on the police virtually across the country. I think this issue is reaching levels where unless the Home Ministry takes some initiative along with the states, it will get from bad to worse. The next issue that I wish to bring to your kind attention are the challenges that we face in the northeastern states of India. The creeping influence of China and the dumping of huge amounts of cheap goods is creating an environment which is not conducive to the security of the country. In this regard, I will move to my third point, and which is the ISI surveillance from Sri Lanka on the US and Israel consulates in Tamil Nadu, and the creation of a network of Indian moles, which I think is a dangerous beginning to what our country wishes not only do in the north, but across the country, including the south of India.
The eventual aim is to create Bombay-type situation in other parts of India. I think we should learn a very important lesson from the Headley episode. And in this regard, I would request you, to kindly share with this House. Mr. Minister, I would like you to share with the House the snooping of United States, which was discussed apparently with Mr. Kerry during his recent visit, and to share with this House the things that transpired and that can be put on the public domain. The next point that I wish to raise with you is the rise in social unrest and communal riots in this country, which the other speakers have referred to. Combined with Naxalism, the LTTE, especially with the US troops withdrawing from Afghanistan, and the disturbances that will ensue from now onwards unless all the US troops are withdrawn, until all the US troops are withdrawn. These are extremely disturbing issues, and the Home Ministry has a particular responsibility to give the topmost priorities of the disturbances that will be caused from across the border, even with greater intensity than they have happened in the past. And finally, I think we would like the Home Ministry to share with this House the funds that are being allocated to modernize our police forces, other civil agencies. Are these funds sufficient? Are we doing enough? Or are we still continuing with the spectacle that I personally witnessed on 26 November in 2008 in Mumbai? And finally, I'd request you to share with us some of the measures that you're able to do regarding domestic security, public safety, and the independence and freedom that the citizens of India and those who visit this country can expect as we go forward. You have come new to the government. You have a special responsibility for reinforcing our faith in our Home Ministry. And when you reply to the motion in this House, I would particularly like you to focus on some of the issues that I've raised. I don't want to repeat many of the eminent speakers before me, and they have brought a number of apprehensive issues to the surface. They cannot be ignored. They cannot be ignored, and we depend on the government and its pronouncements and its action to reassure us that our unity and integrity will continue not only be strong in the future, but will be further strengthened. I thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Thanks. Not here. Dr. K. Keshara. Thank you very much, sir. Well, what is my time, sir? Half an hour. Good. Good. So the question is, when we are talking about Home Ministry's thing, it is some kind of umbrella ministry. There is nothing like a specific thing that the Home Ministry is supposed to do. You have 7 minutes, K.K. Rao. Pardon? You have 7 minutes. Well, this is what exactly troubles me. The moment you say 7 minutes, my thoughts run faster than the words, and I get into confusion. So this is exactly the problem. But let us say, sir, 7 minutes you are giving to a party member who is perhaps the largest political, 7th largest political party in Parliament. And if we start arguing about that, you will be losing some time. I will not even speak on the subject, but let me tell you, let me clarify this. I today am in a state, a new state has been created. I am a ruling party there. The issues that concern today with the Home Ministry, whether they be with the state and state relations or the governor's role, which you said, or you are talking about Naxalite, whether it is a Naxalite issue, they concern me. At least have some kind of time for me and give me a hearing.
One thing I would like to say, I have heard it covers all the things. I would not take it up. Actually, I came with 5-6 subjects. I would drop them all because once Mr. Ashwini Kumar talked something about the perception. I want my friends, I'm very close to the moment you had got elected, we are all congratulating you. You have the mandate with you. You have the people with you. You have raised the hopes in them. There are a lot of expectations. But let us also say, there is a strong perception in the people. The perception does not come in air. Perception comes when the conscience becomes fixed. When I have some kind of opinion which is absolutely there. The perception is about communal divide, communal polarization, or your own views on that. How you act, it is for you to decide. Because mere slogan mongering or wishful thinking will not help us. If there is an action, perhaps you will be able to cut it. That is why I only refer to what Ashwini Kumar said. I'll drop that subject now. Sir, as far as I come to the moment there was a report here, they said the state-central relations. We will have equal love and cooperation. We will have a cooperation built up as far as the states are concerned. We will be the best models for the federalism. Nobody can be more happy than us in a new state if we think we'll have that kind of a cooperation. The Prime Minister talked to us, gave special timing, met us personally again, took us inside and said, I have been a Chief Minister for long and I know the problems of state, so we will have the best of the relations. Sir, this is only 90 days. Mr. Chairman, sir, believe me, now I have a missive. There is an order, there is a letter, which I would not like to dwell deeper to that because this morning I believe in the Lok Sabha when this issue was raised, the Home Minister said, I have not looked into it, I'll look it back, I'll reconsider it, revisit it. But what does it say? It says this is the new 29th new state created in Andhra Pradesh and whose powers should be known by the Constitution, there in the Constitution. Nobody need give to us. This Schedule 7 tells us the powers that go to state, that is the law and order in the hands of the state. Well, it is a well settled matter, I am not trying to say. It is also a fact, in the reorganization bill, section 8, uses the word special responsibility to the governor. It should be read like 1652 in a particular system, not self-effacing system. Today we will receive a letter, Mr. Chairman, sir, where the sub-inspector and the inspector will be appointed by the governor in the state of Telangana. Can there be a greater shame than this? If I am a constitutionalist, I like democracy, I like federalism, I like my own governance. If I am elected government, I can understand the governor coming and trying to advise us or be helpful to us in governing. If there is something wrong because there have been 2 regions, they are really at loggerheads, you are trying to solve it, you are sitting with us, because that is what exactly special responsibility meant. Special responsibility law and order meant that. It did not mean the governor will come and appoint sub-inspectors and circle inspectors. We were talking yesterday to West Bengal and the Orissa on that. We are not trying to put it. So that is the question, how this is being dealt with. This you must look. Mere words will not help you. Talking about federalism will not help you unless you have understood what exactly the federalism is in a democratic system. The constitutional system, there is something less. Anyhow, I am not trying to stretch this too long because the Home Minister seems to have intervened and said he will look into the letter because the first letter, this is the second letter they have sent. In the first letter when it was referred to the Home Minister, he said he has not seen the letter. He would not agree to the wordings of the letter. Now again the second letter came. Today it was raised in the Lok Sabha, so I would not dwell it. But I would only caution, as an equal to you, that let us have a better understanding. Sir, I come to another issue. Everybody is talking about Naxalism. Telangana was on the map of it. Mr. Dua has raised it and said, and Tyagi said why it would take it. There is one Mr. Jairam Ramesh. I think of 83 districts, easily 40, 50 districts he had gone. There are many reports. But what is that we have done? We always talk about Naxalism, all right. What is Naxalism? It is only a label. It is a delayed response to development. You have developed yourselves. We have come to know only today
after 50 years of independence. When we come and assert, we become Naxalites to you people. What exactly is this Naxalism all about? Have you read the reports? At least I'm asking because there's a member here. He has sent the 50 reports. Have you read why did I come at all? They are not seeking any development, Mr. Chairman, sir. They are seeking empowerment. There is a difference, the nuances between development and development. They want you to blend with them. They want you to understand the sentiment. What is happening? What is PESA? You have PESA to book in the book. The law books, you have the PESA. But what did you do with the PESA? I'll give you Polavaram. My Jairam Ramesh will be unhappy with it. But I got it. Without asking them, you took over it. 2 lakhs of people are being sent out. Did you talk to them? Are they not worth talking? Is it not their economic conditions to be factored in every scheme of yours? This is not being factored in. All you sit here and decide about it. And somebody says development. I don't know, just now because, sir, I was in charge of your Jharkhand. Jharkhand, we did have the development. We did have the roads. But you know, nobody used those roads. Those roads take round the hillocks, whereas the tribal as well walk down the shortest route. So how should it all be? Then I'll come straight, not taking much of your time. How do we tackle it? In a consultative committee, myself, Dua, had given to the Home Minister one proposal. Why not MPs go there? Because I have gone there. As far as Andhra Pradesh is concerned, Mr. Chairman, sir. Time is sir, only 1 minute I'll take. 2 things. In Andhra Pradesh case, Make it 1 minute only. the nation did not agree to talks with the Naxalites. I was the president of the party. I held the discussions. I held the peace talks, first peace talks in the country with Naxalites. Today, none of your reports speak about Telangana. Why? I don't say Naxalism has gone out. But nonetheless, you don't have that kind of problem. In West Bengal, when Mamtaji and others, I went at their Jungle Mall, everybody criticized. Entire nation has something, the skies are going to fall. What happened? You have seen the results today. Those people, is not the Naxalites we are talking. Thank you very much. People of the remote areas who should be taken into confidence. You should blend with them. You should understand them. You should understand their sentiments. Then only will you be able to come to it. Otherwise, mere guns wrong. Whenever we touch, one sentence. Whenever we talk about police, whenever we talk about Naxalism, we talk of modernization of police. What is this modernization? I don't know. That means guns. That is weaponry. What kind of weaponry is this? We want you to go to and understand their hearts, understand their lives. That will help you. I'll have to call the next speaker now. So please, thank you very much. I say thank you very this is the high time. Number one, the government, the central government must think of having some kind of council wherever the new states are coming. If there are differences between two states, thank you they very should much. work. Thank As far as Naxalism is concerned, mere police and other talk of weaponry would not help you. Think of identifying yourself with them, their sentiments. Thank you, sir. Very good. Shri Digvijay Singh. माननीय, आज गृह मंत्रालय पर चर्चा जब हो रही है तो अच्छा तो तब लगता मुझे जब माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ मौजूद होते। जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के पहले गृह मंत्री जी को अपना एक आदर्श माना है और आदर्श के लायक थे भी, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से संघ की विचारधारा को समझा था और उस पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। पूरी गृह मंत्रालय के अधिकार उनके पास थे, लेकिन धीरे धीरे अधिकार गृह मंत्रालय के कम होते चले गए। सीबीआई हटा लिया गया, आईबी चीफ प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करने लगा और एनएसए का गठन अटल जी के समय करके, चाहे वो अटल जी ने अपने राजनीतिक तरीके से सोचा हो किसी के पर काटने के लिए, लेकिन
एनएसए के गठन के बाद सिक्योरिटी के सारे मसले प्रधानमंत्री कार्यालय में समावित हो गए। माननीय सरकार और सत्ता इकबाल से चलती है और वह इकबाल उस समय राजनाथ सिंह जी का कम हो गया जिस दिन माननीय गृह मंत्री जी को निज सचिव अपॉइंट करने का अधिकार छिन गया। और तो और माननीय सभापति जी, उस समय और जख्म में नमक लगा दिया गया जब दूसरा प्रधानमंत्री सचिवालय से ये घोषणा हुई कि अब माननीय गृह मंत्री जी के फला फला निज सचिव रहेंगे। माननीय इसी के साथ साथ एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट की प्रक्रिया रहा करती थी। डीओपीटी के सेक्रेटरी डीओपीटी मिनिस्टर को भेजते थे फाइल और डीओपीटी के मंत्री गृह मंत्री जी को भेजते थे और गृह मंत्री जी कैबिनेट सचिव को भेजते थे और कैबिनेट सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजते थे। यह प्रक्रिया रही है। मोदी जी के आने के बाद उस प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ और डीओपीटी के मिनिस्टर को उससे अलग कर दिया गया। और यही नहीं माननीय, उसके बाद एक और परिवर्तन किया। डीओपीटी सीधे फाइल अब भेजते हैं कैबिनेट सचिव के पास और कैबिनेट सचिव के पास जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाती है और सूचनार्थ माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंच जाती है कि फला व्यक्ति का फला जगह अपॉइंटमेंट हो गया। माननीय गृह मंत्री जी की इस सरकार ने बता दी। यही नहीं है, चर्चाएं हैं, मैं नहीं जानता कहां तक सही है कि दिल्ली पुलिस के थानेदार और एसीपी और डीसीपी की नियुक्तियां भी अब प्रधानमंत्री कार्यालय से आप ठीक है, गृह मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे थावर चंद जी? मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री सचिवालय और बाकी सब। माननीय किसी भी माननीय मंत्री जी को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जिसका उल्लेख अभी माननीय हमारे प्रोफेसर साहब ने किया, अश्विनी जी ने किया, जब हम लोगों ने ये पढ़ा कि नितिन गडकरी जी का फोन बगिंग हो रही है, उसी के साथ साथ अन्य मंत्रियों की बगिंग भी हो रही है, तो ये चिंता का विषय है माननीय, क्योंकि ऐसे लोग अब सरकार में पहुंच गए हैं जिनके ऊपर प्रथम दृष्टया इस प्रकार के आरोप हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गृह मंत्रालय उनके पास था और वहां एक महिला की फोन टैपिंग हुई है। स्वयं उन्होंने कमीशन बैठाया है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन हुआ है, आईटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है, वो अब प्रधानमंत्री हैं। उसी सरकार में एक राज्य मंत्री भी हैं जिन्होंने सेना में टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन का गठन किया था। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि तत्कालीन गुजरात के एक आईजी साहब ने बयान दिया था 2000-2003 में कि तत्कालीन गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री गृह गुजरात के, उनके टेलीफोन बगिंग का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था, उनकी हत्या कर दी गई बाद में। यही नहीं है, गुजरात के डीजीपी पाठक साहब ने
2012 में यह बयान दिया था कि लगभग 97,000 फोन टैपिंग के उदाहरण गुजरात के हैं, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, राजनेताओं की तो होती ही होगी। मैं इस बारे में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वयं तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के गठन की सूचना के बाद, मैं कोट करता हूं, द इंक्वायरी वाज conducted on the request of the Home Ministry, which is auditing phone tapping equipment imported by various stakeholders, not only for army, but was taken all over India by many people. यह गंभीर विषय है माननीय, क्योंकि आज कई ऐसी कंपनियां हैं और इक्विपमेंट अब केवल लैपटॉप पे आ रहा है, किसी का भी फोन टैप हो सकता है। अगर केंद्र सरकार की प्राइवेसी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही, उस पर आप वेबसाइट पर चले जाइए तो आपको इस बात के उदाहरण मिलेंगे कि हजारों इस प्रकार की मशीनें इंपोर्ट हुई हैं और आज किसी का भी फोन कभी भी टैप हो सकता है। स्वयं सेना ने भी, रक्षा मंत्रालय ने 8 इस प्रकार के ऑफ एयर इंटरसेप्टर्स इंपोर्ट किए थे। सेना को डिस्टर्ब जोन्स में तो फोन टैपिंग के अधिकार हैं, लेकिन इस डिवीजन से दिल्ली के फोन टैपिंग भी हो रहे थे। और माननीय, एक मेरा भी फोन था उस समय 2010 में, जब इसी आर्मी के डिवीजन ने फोन टैप किया था, ऑन रिकॉर्ड है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है माननीय, अरे मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता मंत्रियों की भी है कि उन मंत्रियों के फोन अगर टैप हो रहे हैं तो एक अविश्वास की परिस्थिति बनी हुई है इस पूरी सरकार में। इसी के साथ साथ माननीय, अगर गृह मंत्रालय ने इसका ऑडिट किया है, आपकी सरकार को आपसे ही डर था क्या? जी, माननीय चेयर, माननीय मेरे सख्त आपत्ति है, मुझे सख्त आपत्ति है और मैं चेयरमैन साहब से शिकायत करूंगा कि चेयर ने इस प्रकार की आप टिप्पणी इस बात की बैठ कर, मैं तो मजाक भी कर सकता हूं ना आपसे। मजाक आप घर में बैठ के करेंगे, आपसे बाहर बैठ के करेंगे, रिश्ता है, लेकिन चेयर पर बैठकर आपकी ये टिप्पणी मुझे घोर आपत्ति है। मजाक करने में भी आपको तकलीफ हो गई है। चेयर को मजाक करने का अधिकार नहीं है और इस प्रकार की टिप्पणी, पार्टीजन टिप्पणी करने का अधिकार। आई एम सॉरी अगर यही बात है तो मैं तो आपसे थोड़ी सी, क्योंकि यू नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये मजाक आप बाहर करते तो हम लोग चाय पीते साथ में। माननीय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये भी एक हम जानना चाहते हैं गृह मंत्रालय से कि अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में यह बात आई है, मेरी जानकारी है, कहां तक सही है मैं नहीं जानता, कि जो 8 मशीनें इंपोर्ट की गई थी रक्षा मंत्रालय ने, वो 2 मशीनें कॉर्पोरेट सेक्टर को बेची गई हैं, नीलाम की गई हैं, और उसका रिकॉर्ड इसलिए नहीं है कि सारी जो लेन देन हुआ है वो एसएस फंड्स के माध्यम से हुआ है और उस एसएस फंड्स में डिफेंस सेक्रेटरी के आज तक हस्ताक्षर नहीं है। माननीय, ये चिंता का विषय हम सबके सामने है, जिस पर कि गृह मंत्रालय जी, मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। माननीय, सबसे बड़ा आज खतरा इस देश में आतंकवाद का है। आतंकवाद कहां से जन्म लेता है? ये घोर सांप्रदायिक विचारधारा ही आतंकवाद को जन्म देती है। कांग्रेस पार्टी ने इन सांप्रदायिक शक्तियों से हमेशा लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है, इसी प्रकार मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। आजादी के पहले जहां हिंदू महासभा और आरएसएस के खिलाफ हम लड़ते थे, तो मुस्लिम लीग के खिलाफ भी हम लोग लड़ते थे। और मैं कहना चाहता हूं, माननीय साइलेंस प्लीज। प्रभात झा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं उनको तब से जानता हूं जब माननीय मुझसे, आई एम नॉट यील्डिंग, मैं कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में, मैं पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने जहां एक तरफ बजरंग दल, दूसरी तरफ सिमी के खिलाफ बैन करने के लिए गृह मंत्री केंद्र सरकार को मैंने अनुरोध किया था।
क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि सांप्रदायिक शक्तियां चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, ये सब देश के लिए अहित है। इस विचारधारा से हमारी लड़ाई है। मैं तो आज भी इस बात को कहता हूं, इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वहाबी विचारधारा और तालिबान विचारधारा आज इस विश्व के शांति के लिए खतरा है। लेकिन उसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूं, उतना ही खतरा हमें इस संघ की विचारधारा से भी है, जो इस देश में अशांति फैला रही है। अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे और मैं इस बात को कहता हूं, माननीय, कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है पैम्फलेट्स के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, आई एम नॉट ईल्डिंग, पुस्तकों के माध्यम से, जिसमें कि आप थोड़े से सही आंसर। साइलेंस प्लीज। माननीय, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब आप लोग विराज जाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग विराज जाइए, आप लोग विराज जाइए। चेयर इज ऑन, आप लोग विराज 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 विराज। मैं माननीय, विराज जी, आपका माननीय, ये एक ऐसा संगठन है जो कि रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, उसमें इनको क्या आपत्ति है? इनको क्या आपत्ति है? विराज जाइए, माननीय, विराज जाइए, विराज 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 माननीय, विराज जाइए। अविनाशी विराजिए। अविनाशी, द चेयर इज ऑन इट्स सीट, चेयर इज ऑन इट्स। माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब कुर्सी जब चेयर खड़े होते हैं तो आप लोगों को बैठने के लिए, आप लोग, मैं उनको भी कहूंगा, माननीय, विराज विराज। माननीय, इस प्रदेश में जो सांप्रदायिक विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए पैम्फलेट छापे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, जिनमें पब्लिशिंग की हाउस के नाम नहीं है। मैं उदाहरण के लिए आपको ये 2 बात देना चाहता हूं। ये कंधमाल के विषय पर 2 किताबें हैं। एक किताब है जिसका नाम है हार्वेस्ट ऑफ होप, कंधमाल इन क्रॉसफायर, उसके लेखक का नाम है माइकल पार्कर। इसी प्रकार की दूसरी किताब वर्ड टू वर्ड, उड़ीसा इन द क्रॉसफायर कंधमाल बर्निंग बाय ब्रैनन पार्कर। ये माइकल से हटकर ब्रैनन हो गए। और साथ में माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस इंडिया फाउंडेशन ने इस किताब को छपाया है, जो पता दिया है, वो द्वारका पर हमने जाके पता लगाया, उसमें एक निजी व्यक्ति फ्लैट में रहता है, इंडिया फाउंडेशन का वहां दफ्तर नहीं है। और इंडिया फाउंडेशन पर हमने नेट पे जाकर देखा, उस इंडिया फाउंडेशन में, धन्यवाद है माननीय गृह मंत्री जी ने जहां पधारे, माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नेट पर इंडिया फाउंडेशन नहीं है, मैं चुनौती देता हूं। और दूसरा ये भी कहता हूं, इस किताब का फॉरवर्ड हमारी माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने लिखा। आपका टाइम नहीं, ऐसा नहीं है माननीय, मेरा डिस्टर्ब ये लोग करते, मेरे को अभी बोलने का समय दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, का समय दिया जी, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं पार्टी की इस पर हमें रोक लगाने की आवश्यकता है, इस पर भी जांच कराने की आवश्यकता है। यदि आपने इस विचारधारा के लोगों की किताबों को ऐसे बंटने का इजाजत दे दी, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर और तेजी से फैलेगा। थैंक यू। तो नहीं, 15 मिनट आपकी पार्टी नहीं दिया। नो प्लीज, आई एम नॉट, मैं आपसे पार्टी लिखकर दे भाई, इन्होंने 10 मिनट इन्होंने बिगाड़ दिए। वो तो आप ही ने शुरुआत की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखेंगे, प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा है, पुणे में, मुजफ्फरनगर में जितने भी ये प्रकरण हैं, इसके अंदर इस प्रकार के सोशल मीडिया पर आपसे अनुरोध है गृह मंत्री जी कि इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। फेक आइडेंटिटी बनाकर हर कोई कुछ लिख सकता है। इस पर आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। टाइम और लेंगे। नो प्लीज, देयर आर 2-3 पॉइंट्स। माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं टेरर केसेस के बारे में।
टेरर केसेस को फास्ट ट्रैक में डालना आवश्यक है, लेकिन अजमेर ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के अंदर जिस व्यक्ति का एफआईआर में नाम दर्ज है, वो आज बयान देता है कि हिंदू आतंकवाद के केसेस में उनको तो बेल कर दिया जाए, लेकिन मुसलमानों को नहीं की जाए। इस प्रकार की विचारधारा ही इस देश के लिए खतरा बनी हुई है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय, फॉल्स इनकाउंटर्स हुए और आज इस देश में जिन लोगों के चार्जशीट लगी है उसमें इस बात को देखना आवश्यक है कि चाहे किसी का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनके केसेस में तत्काल निराकरण होना चाहिए। मैं अनुरोध ये भी करना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस की बात हमारे अनिल दवे साहब बात करते रहे हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस क्या का मतलब क्या ये है कि गुजरात के अंदर 50,000 कांस्टेबल्स की पद खाली हैं। क्या गुड गवर्नेंस ये है कि वहां के कांस्टेबल्स को और थानेदारों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब दिया जाता है 5 साल के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब सुन लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ कहावत है, सुन लीजिए, कहावत है, बुंदेलखंड में कहावत है, 100 के 70 दे दो और नाम दरोगा धर दो। बात गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। क्या गुड गवर्नेंस ये है कि 50 से ज्यादा पुलिस अफसर गुजरात सरकार के जेल में बंद है? क्या गुड गवर्नेंस ये है कि थानेदारों को आप कॉन्ट्रैक्ट इसका जवाब रखा जाएगा ना? आप लोग को जब मौका मिलेगा जवाब देंगे, पर आपका जब मिलेगा जब। मैं 2 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्लीज विराज, the chair is on its feet, please. आप chair is on its feet. माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आर्म्स लाइसेंस के अंदर हमारी आपत्ति इस बात की है, हमारी पूर्व के माननीय गृह मंत्री जी ने आर्म्स एक्ट के जो गाइडलाइंस थे उसके विपरीत निर्णय ले लिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत पूरे देश में जो आर्म्स लाइसेंसधारी हैं उनको परेशानी हो रही है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली उन गाइडलाइंस को विड्रॉ करने के निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें। यदि ड्राइविंग लाइसेंस का लाइफ टाइम का आप लाइसेंस दे सकते हैं, तो आर्म्स लाइसेंस का भी आप लाइफ टाइम का दे सकते हैं। अभी किया या पहले किया था? आप थोड़ा सा समझा दें तो। जी, तो मैं आपसे अनुरोध कर, आपके हित की बात भी कर रहा हूं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पहले किया या बाद में किया? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर किसी जी ये सरकार ने किया या नहीं, पूर्व सरकार, मैंने कहा पूर्व सरकार, बिल्कुल आपके हित की बात कर रहा हूं कि पूर्व सरकार के, मेरे तो हित की नहीं, सबकी हित की सबके बात हित करिए आप। इसलिए क्योंकि इलीगल आर्म्स जो हैं उनसे ही अपराध होते हैं। 95% क्राइम जो है इलीगल आर्म्स के माध्यम से होते हैं, इसलिए आप उस पर पुनर्विचार करें। नक्सल की व्यवस्था के बारे में माननीय गृह मंत्री जी के उसकी टिप्पणी पर मुझे आपत्ति इस बात की है। उन्होंने अपने बयान में कह दिया था, अपने उत्तर में कह दिया था कि जीरन घाटी के अंदर जब घटना हुई तो कांग्रेस के नेताओं को कह दिया था कि आप मार्ग बदल दीजिए। ये और भी गंभीर विषय हो जाता है माननीय, कि अगर आज की सरकार ने वहां पर अगर मार्ग बदलने का उन्होंने निर्णय नहीं उनको नहीं कहा और उसके बाद ये घटना हुई है, तो इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार इसमें कैटेगरी में खड़ी होती है। मैं आपसे आखिरी में अनुरोध करना चाहता हूं माननीय, हमारी सहानुभूति माननीय गृह मंत्री जी के साथ है। इनका पुरुषार्थ में अब आपने ईश्वर से यही प्रार्थना है, इनका पुरुषार्थ, इनका शत्रुत्व जागृत हो, यही मैं उनसे कामना करता हूं। धन्यवाद।